ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 7th canto, chapter 14, text 38. श्री भगवान् तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा जथेयते। यस्यैव भगवान् राजं तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा जथेयते। ଏ ଶ୍ଳୋକର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କୁହାଯାଉଛି। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଯେପରି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିର ତାର ଯାହା ଜ୍ଞାନର ପରିପ୍ରକାଶ ଯେପରି ଭାବରେ ହେଇଛି ତପସ୍ୟା ବ୍ରତ ଆଦି ଅନୁଯାୟୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଦି ଅନୁଯାୟୀ ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରକାଶମାନ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମା। ଏ ହେଲା ଶ୍ଳୋକର ଅର୍ଥ। ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ରାଜଂ ତାରତମ୍ୟେନ ବର୍ତ୍ତତେ ତସ୍ମାତ୍ ପାତ୍ର ହିଁ ପୁରୁଷୋ ଯାବାନାତ୍ମା ଯଥେୟତେ। ନାରଦ ମୁନି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ବହୁ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଯେ କଥାଟା ହେଉଛି ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି, ବିକାଶ ଘଟିଛି, ତଦନୁଯାୟୀ ତାର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇছে, ତଦନୁଯାୟୀ ହେଇଛି। ଏ ହଉଛି ଆମର କଥା। ଚେତନାର ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆମର 5 ପ୍ରକାର ଚେତନା ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ 5 ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଚେତନା ସ୍ତରକୁ ଆବୃତ ଚେତନା, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଏବଂ ମୁକୁଳିତ ଚେତନା, ବିକଚିତ ଚେତନା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଚିତ ଚେତନା। এই କଥା ଆମର ଅଛି। କାଲି ବି ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ଏ ଚେତନା ସ୍ତରର ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ 5 ପ୍ରକାର ଚେତନା ସ୍ତର ଅଛି। এই କଥା ଆମେ ବହୁବାର କହିଛେ। ତେବେ ଆବୃତ ଚେତନା, ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଏ ମାନବେତର ପ୍ରାଣୀ ସ୍ଥାବର ଯୋନିରେ ଯେଉଁ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବୃତ ଚେତନା। ତା ଅପେକ୍ଷା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଜଳଜୀବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, କୃମି, କୀଟ ଏସବୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚେତନା ସଂକୁଚିତ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛି। ଆଉ ମୁକୁଳିତ ଚେତନା, ବିକଚିତ ଚେତନା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଚିତ ଚେତନା ଏ ସ୍ତର ମାନବ ସମାଜରେ ଅଛି, ମାନବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଏ ଚେତନା ସ୍ତର ଅଛି। ନାରଦ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଚେତନା ସ୍ତରର ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହାର ଯେପରି ଚେତନା ସ୍ତରର ବିକାଶ ହେଇଛି ତଦନୁଯାୟୀ ହବ। ତଦନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାସ୍ପିଂ ପାୱାର, ବୁଝିବାର ଶକ୍ତି ରହିବ। ଏବଂ ସୁପର ସୋଲ୍ ଯେ ରହିଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଯେ ରହିଛନ୍ତି ସେ ପରମାତ୍ମା ତଦନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଜୀବକୁ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦଉଛନ୍ତି, ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜୀବ ତାର ଏଇ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୁଝିବ ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଉପଦେଶଟା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଇଟା କଥାଟା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ କ୍ରମ ବିକାଶ ଅଛି, ଚେତନା ସ୍ତର କ୍ରମ ବିକାଶ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କଥା ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧରେ 29 ଅଧ୍ୟାୟ
28 श्लोक 31 श्लोक मध्य ये विषय भल भाव कही जीवा श्रेष्ठा ही अजीवानां तद प्राणभृत शुभे तद सच्चिता प्रवरास ततश्चेन्द्रिय वृत्तय तत्रापि स्पर्शवेदिभ्य प्रवरा रसवेदिन तेभ्यो गंधवीद श्रेष्ठा तत शब्दवीदो वराः रूपभेदो विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः प्राणदंत जीव प्राणदंत जीव मान मध्य जो माने चित्तवृत्ति द्वारा चालित होती से सचित जीव कह जाए। सचित जीव मानकर चित्तादि इंद्रियादि साहाय्य प्रकाशित होय। इंद्रियादि उत्पत्ति ही प्राणी मानकर विभिन्न प्रकार क्रम विकास भित्ति स्पर्श रस गंध शब्द और रूप ये पांचटी चित्तवृत्ति अच्छी यथाक्रमे जीव मानकर मनरे एगुड़िकर विकास होय। फल परे परे स्पर्शेन्द्रिय रसनेन्द्रिय आदि पांचटी इंद्रिय समस्त वृत्तिर आधार स्वरूप जीव देह स्थान पाई। जो समस्त जीव स्पर्श द्वारा आहार संग्रह करती ए चलाबुला जनन क्रिया संपादन करती से स्पर्शवेदी जीव यथा गोबर पोक जिया शामुका प्रभृति जीव यही श्रेणीर स्पर्शवेदी श्रेणीर अटंती माने माकड़ासार जालर कंपन द्वारा स्पर्शबोध है। एमान अपेक्षा श्रेष्ठ मत्स्यादि रसवेदी जीव। अन्य जीव मान मध्य रसकोश केवल जिह्वारे ही थाए किंतु मत्स्यर समग्र शरीर रसकोश व्यापृत ही थाए। तदपेक्षा श्रेष्ठ गंधवेदी जीव। भ्रमर मधुमक्षिका पिपीलिका प्रभृति जीव गंधवेदी पर ज्याभुक्त। एमान मध्य राजा रानी सैन्य सामंत सेनापति श्रमिक प्रासाद दुर्ग गृह भंडार पालित प्राणी इत्यादि अच्छी। वैज्ञानिक गण कहते एमानकर शब्द ज्ञान आदौ नहीं। विभिन्न प्रकार गंध द्वारा विभिन्न प्रकार सटपदी प्राणी चलती। एकमात्र गंध ही एमानकर जीवन यात्रा संबल। तदपेक्षा श्रेष्ठ शब्दवेदी प्राणी बेंग साप आदि सरीसृप गण इस श्रेणीर। कुंभीर शब्दवेदी प्राणी। कुंभीर थिबा नदी रे लोक निशब्द रे ठिया ले कुंभीर धरे ना कौन प्रकार शब्द कले कुंभीर धरिव। तदपेक्षा श्रेष्ठ रूपवेदी प्राणी। पक्षीगण साधारणतः रूपवेदी बा दृष्टिवेदी जीवर अंतर्गत। पक्षीगण खाद्यर वर्ण देखी से खाद्य खाद्य निरूपण करती। ये समस्त रूपवेदी जीव अपेक्षा उत्तरोत्तर भाव बानर गोरिला बण मनीष असभ्य मनुष्य सभ्य मनुष्य श्रेष्ठ। सभ्य मनुष्य मध्य वेद विरोधी एवं वेदानुग भाव दुई प्रकार लोक देखा मिलती। वेदानुग मध्य कर्मी ज्ञानी भक्त अच्छा। कर्मी अनित्य आत्मसुख कामी जैमिनी प्रवृत्ति कर्मकांड को जो माने बहुमान करती से क्षीणे पुण्य मर्त्यलोक विशंति। पुण्य क्षीण हेले पुनराय मर्त्यलोक पतंती। शंकराचार्य तदनुग संप्रदाय मुखरे केवल वेद स्वीकार कले सुधा युक्तिवादी और आम्नाय विरोधी। वेदानुग भक्त संप्रदाय ही प्रकृत श्रोतपंथावलंबी श्रुति माता मर्यादा स्थापनकारी प्रकृत संतान प्रकृत दैव ब्राह्मण वैष्णव कथा जाकवा जाउछि। ए क्रम विकास कथा अछि। पुनश्च श्री रूप गोस्वामी मध्य उपदेशामृतरे कहिसंति कर्मिभ्य परतो हरे प्रियतया व्यक्ति जजुर्ज्ञानिन स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमी कनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल पंकज दृश्यस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्दोदीयं तदीय सरसी तं नाश्रयते कः कृति। कर्मीगण तात्पर्य होछि कर्मीगण पृथ्वी रे सभ्य जीव मान मध्य सर्वप्रथम आच्छादित चेतन तटस्था शक्ति जात जीव भगवत बहिर्मुखता हेतु त्रिविध क्लेश तप्त होय। आच्छादित चेतन होई प्रथमे स्थावर रूपे जन्म ग्रहण करे। आच्छादित चेतन स्थावर जोनि आच्छादित चेतन मध्य वृक्ष रूपे तदपेक्षा कौन विचार फुंगस बा मशरूम तदपेक्षा किसी उन्नतर अर्थात संसार वासना भगवत बहिर्मुखता वर्तमान रखी उन्नतर जीवनधारी स्पर्शवेदी प्राणी रूपरे यथा जिया गोबर पोक इत्यादि तदपेक्षा रसवेदी प्राणी रूपे मत्स्यादि तदपेक्षा गंधवेदी प्राणी रूपे
अर्थात पिंपुड़ी मौमाछी प्रभृति तदपेक्षा शब्दभेदी प्राणी बेंग सरीसृपादि तदपेक्षा रूपभेदी जीव तिर्यक पक्षी प्रभृति तदपेक्षा बादुड़ी तापेक्षा श्रेष्ठ पशु तन्मध्ये बानर तदपेक्षा श्रेष्ठ असभ्य मानव तदपेक्षा श्रेष्ठ सभ्य मानव सभ्य मानव मध्य कई अपौरुषेय वेद परमेश्वर सदानंद विग्रह और शब्द श्रुति उद्गान धारार अवतरण केवल मात्र मुखरे केवल अंतर स्वीकार करे मुझे केतक मानव आदौ ता स्वीकार करती ना जो माने मुखरे वेद मानती से सौत ब्रुव कर्मी ज्ञानी जोगी तपस्वी इत्यादि नाम परिचित सौत पथर पति कहते ईश भक्त बा भगवत भक्त शास्त्र ज्ञानी मान को कर्मी अपेक्षा श्रेष्ठ बोली कही ए पर्यंत तटस्थ जीवर गति ज्ञानी पर्यंत ब्रह्म सहित एकीभूत होबार चेष्टा अर्थात निर्विशेष ब्रह्म साजुज्य पाइबार चेष्टा ताकू निर्वेद ब्रह्म ज्ञान कहा जाए सूक्ष्म भाव विचार कले बंधन मोचन रूप कामना अच्छी यार परिणाम पुनराय संसार वासना है अपरोक्ष पर्यंत यही ज्ञानर गति प्रकृत सौत पथर व श्रुतिर मंत्रदाता व्याख्याता आचार्य का अनुगत्य परित्याग कर चलिले जीवर संसार गति लाभ है भगवनिष्ठ चिदविलास श्री गुरुदेव अनुगत्य हेले चिशक्ति व स्वरूप शक्ति बल प्रकृत मुक्ति लाभ हुए जो माने शुद्ध भक्तिर आश्रित से माने ज्ञान मुक्त भक्ति परम अर्थात से माने परमहंस से परमहंस गण मध्य पुणी जो माने केवल भोग सुख वांछा व्यतीत अन्य वांछा पोषण करती ना से माने ही परमहंस गण मध्य शिरोमणि प्रेमिक निष्ठ यथाक्रमे ज्ञान मुक्त भक्ति परम वैकुंठ अयोध्या द्वारकावासी अपेक्षा प्रेमिक निष्ठ मुक्तावासी तदपेक्षा वृंदावन वासी गोकुल स्नान अपेक्षा स्नान कमलाकार वस्तु से अधिक प्रतिभेद विचित्रता अच्छी भक्तगण मध्य से कथा श्रील सनातन स्वामी प्रभु श्रील रूप गोस्वामी प्रभु भक्तंकर्तार्थ में विचारे मध्य इंद्र तत्पर ब्रह्मा तत्पर शिव प्रह्लाद हनुमान पांडव जादव मथुरावासी ब्रजवासी गोपी और श्रीमती राधाराणी उत्तरोत्तर श्रेष्ठत्व कथा जन ये सब तारतम्य रही से तारतम्यर कथा एठे कहते कि ना नारदमुनि तारतम्य अनुयायी सुपर सोल परमात्मा जो प्रवृत्ति करुचंती बुद्धि दौरान जीव ग्रहण कर तेणु समस्त ग्रहण करने शक्ति बोधगम्यता सामान नुहे ये तारतम्य रही आमर चेतना संबंध में बहु कथा कहुई चेतनार विकास अनुजाई तारतम्य रही